عوام پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی سے سخت نالاں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی حکومت کی کارکردگی کا گیلپ سروے جاری کر دیا گیا۔ سروے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کارکردگی کے لحاظ سے کے پی حکومت کو پچھاڑ دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی سراہنے پر مجبور۔ 50% لوگ مریم نواز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کے پی عوام کا رجحان پنجاب کی قیادت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کے پی میں عوام کا گورننس، معیشت اور سہولیات پر ناراضگی کا اظہار۔ کے پی حکومت نے احتجاجی مظاہروں میں وقت برباد کیا۔ گیلپ کا سروے فارم 47 کی حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں اور کراچی کی گندگی پر گیلپ نے عوامی رائے کیوں نہیں دی؟ بیرسٹر سیف نے پختونخوا کی حکومت سے متعلق عوامی رائے پر مبنی گیلپ سروے کو سیاسی اسکرپٹ قرار دے دیا۔ کہا مفروضوں پر مبنی سروے کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ گیلپ پنجاب حکومت کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں دکھائے۔ گیلپ سروے خیبر پختونخوا میں جاری تبدیلی کے منہ پر تماچا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا گیلپ سروے کے نتائج پر رد عمل بولی۔ خیبر پختونخوا میں 12 سالہ جعلی تبدیلی کا پول کھل گیا ہے۔ سروے میں 73% عوام نے گنڈاپور حکومت کو چارج شیٹ کیا۔ خیبر پختونخوا کی حالت ایسی ہے کہ اسے کسی سروے کی بھی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا افتتاح کر دیا۔ پیرا اگلے ہفتے سے لاہور میں سرگرم ہوگی، دسمبر تک پنجاب بھر میں فعال کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب، بولی پیرا فورس میں تقریباً 8000 اہلکار ہوں گے۔ پیرا فورس کو سینکڑوں گاڑیاں اور جدید اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ قانون اگر کاغذ پر لکھا رہے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹیکس گوشوارے کا آسان اور اردو میں ہونا خوشائند امر ہے۔ گوشوارے بھرنے کے عمل میں مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن، مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام کے اطلاق کا جائزہ۔ ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کو بھی اردو زبان میں متعارف کروانے کی ہدایت۔ کہا ٹیکس اصلاحات میں عوامی سہولت کو ترجیح دی جائے۔ نئے آسان ٹیکس گوشواروں سے تنخواہ دار طبقہ زیادہ مستفید ہوگا۔ حکومت کے دانش مندانہ فیصلوں کی بدولت پاکستان کی معیشت بتدریج مستحکم ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی میں بینکوں کا اہم کردار ہے۔ نجی شعبے کے قرض میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پریس کانفرنس سے خطاب، کہا ہم گردشی قرضے کو کم کر رہے ہیں۔ نجکاری میں بینکوں کا کردار ہونا چاہیے۔ بینک سرمایہ کاروں سے مل کر بیمار صنعتی یونٹس کو فعال کریں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے نمائندہ آئی ایم ایف نے کہا ای ایف پروگرام کے تحت پاکستان کی معاشی کارکردگی میں بہتری آئی۔ پاکستان کو دیر پا شرح نمو کے لیے مشکلات سے نمٹنا ہوگا۔ 2025 اور اس کے بعد پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ آئی ایم ایف نمائندہ نے ماحولیاتی اصلاحات کے شعبے میں پاکستان کی پیش رفت کو بھی سراہا۔ کہا پاکستانی معیشت کو اب بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین، بیلاروس، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان کے وزراء خارجہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آئندہ ماہ اگست میں اعلیٰ سطح کا وفد کے ساتھ چین کا دورہ متوقع ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق ایف سی چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار رکھے گی۔ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی کام کا اختیار حاصل ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی۔ ہر ڈویژن میں ایک ونگ کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔
फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। वफाकी हुकूमत का FC को फेडरल फोर्स बनाने का ऐलान। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC ने सिक्योरिटी के हवाले से बेपनाह काम और कुर्बानियां दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। FC की तरबियत के हवाले से इक़दाम जारी हैं। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC में पूरे पाकिस्तान से भर्तियां की जाएंगी। FC में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। FC के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम की गई है। FC को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा की तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फेडरल कांस्टेबलरी की ऑपरेशन ज़रूरियात को विफाक पूरी करेगा। FC को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही हैं। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। PTI के साथ इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर बनाना मेरे मकासद में से एक है। PTI से इख्तलाफात को इख्तलाफ तक रख कर तलखियों को दूर करना चाहते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासती इदारे अपनी नाकामी की जिम्मेदारी आवाम पर ना डालें। रियासती इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा नहीं। 4 घंटों में इंडिया को लपेटने वाली हमारी रियासत इतनी कमज़ोर नहीं। मुल्क की तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। कराची चैम्बर के मुतालबात पूरे होने तक पहिया जाम हड़ताल रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की कीमत से मुतल्लिक़ सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, कोई इवेंट होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। गंदम और चीनी को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना की ताजिर बरादरी को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहना था, हड़ताल के मामले पर कल सनअतकारों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 2202 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स बड़े इजाफे के साथ 1,34,300 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ था। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सेक्टर G10 इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारा। 5 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने में मुलव्विस थे। तर्जुमान के मुताबिक कॉल सेंटर में 5 गैर मुल्की 60 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में गैर कानूनी वेबसाइट्स और फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस सीनियरिटी केस में अदालती फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। अपीलें कराची बार और शुएब शाहीन की जानिब से दायर की गईं। इंट्रा कोर्ट अपीलों में जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं की कि आइन में जजेस के मुस्तकिल तबादले का कोई तसव्वुर नहीं। जजेस की आसामियों पर तैनाती जुडिशल कमीशन के जरिए ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। नून लीग के वकील ने कहा, जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती। हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 16 फरवरी तक अगर तारिक आवान का नोटिफिकेशन हो जाता तो वो भी शामिल होते। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी देने का ऐलान। वकला को रियासत की जानिब से
50,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस याही आफरीदी की ज़ेर सदारत जो सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री ब्रांच में आला सतह का इजलास हुआ। बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा और इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए इदारा जाती रवाबित मजबूत करने पर गौर किया गया। कराची में होने वाले अगले इजलास में बार्स के मसाइल पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी। लाहौर, सादिकाबाद, साहिवाल, बहावलनगर, गुजरात और दीगर शहरों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तौसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत की वजह से मुतादिद राब्ता पुल ज़ेर आब। हैदराबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 220 फीडर स्ट्रिप। हैदराबाद रीजन में बिजली की फराहमी मुतासिर। आधे घंटे के दौरान 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हैदराबाद की एयरपोर्ट के इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। घोटकी, नूरियाबाद, जामशोरो, मटियारी, घोटकी और काठगोर में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की खबरों की तरदीद कर दी। बोले हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, अलबत्ता शदीद बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिश से दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा। शहरों में अर्बन फ्लडिंग और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी। PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मॉनसून बारिशों के बायस पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। महकमा इरिगेशन ने दरमियाने दर्जे के सैलाब का ऐलान कर दिया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा बैराज पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में राजनपुर, घोटकी और तौसा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तौसा में कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। राजनपुर के कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की राजनपुर और दीगर इलाकों से पानी की फौरी निकासी की हिदायत। तौसा के सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ ऑपरेशन का हुक्म। मरियम नवाज ने DG खान और दीगर इलाकों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा बारिश के पानी से अवाम खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को मुश्किलात हैं। पानी की निकासी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जहाँ बहक 8 जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। अम्बात, योब, ज़ियारत, मुसाखेल, खुजदार, लोरालाई, लसबेला और कोहलू के इलाकों में हुई। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में सूबे के मुख्तलिफ अजला में 58 मकानात को नुकसान पहुँचा। 47 मकानात जुज़वी जबकि 11 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। तूफ़ानी बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब, लोगों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद राबता सड़कें भी मुतासर हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज़ करने का हुक्म। मंसूबे के तहत प्लेटफॉर्म से 51,911 नादार ख़ानदानों को कर्जा फराहम किया जा चुका। अब तक 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खती रकम तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा रवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। दिन रात कोशिश है कि पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। सूबे की खिदमत का जज्बा हमारा शेवा है। पोलियो के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन की माली इमदाद की जा रही है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कास सिंध में सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। नौजवानों को तरक्की के मौक़े फराहम कर रहे हैं। किसान हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसानों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं।
शाहराह भुट्टो को काठोर और मोटरवे तक दिसंबर में मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद कोरंगी कॉजवे रोड को बंद कर दिया जाएगा। कोरंगी कॉजवे ब्रिज पर काम 80% मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारा शाहराह भुट्टो की तामीर के हवाले से इजलास कहा। शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रोड है जो DHA और कोरंगी को हैदराबाद से मिलाएगी। नया लिंक रोड जुलाई 25 को खोला जाएगा, जिसके बाद 21 किलोमीटर लिंक रोड को मोटरवे से जोड़ा जाएगा। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद केस में नामजद सलमान फारूकी पर मुकदमा खत्म कर दिया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत गिजरी पुलिस ने मुकदमा खत्म करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान ने लिख कर दिया कि मुल्जिमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। बाद अज़ां अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत कराची ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज समेत दीगर मुल्जिमान की जायदादों को जब्त करने के मामले में अहम कदम उठा लिया। अखबारात में इश्तिहारात के जरिए मुल्जिमान की तलबी का नोटिस जारी। 15 जुलाई तक अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। मुकर्ररा तारीख तक अपना मौक़िफ़ पेश करें, बसूरत दीगर जायदाद जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है। पाक पतन के अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसीह करते हुए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। अदालत ने शवाहिद की रोशनी में जमानतें मंजूर करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर हेल्थ अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला का कहना है कि अवामी सहूलत के लिए 14 अगस्त तक अजरक नंबर प्लेट के लिए किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल का चालान नहीं होगा। शहरी जल्द अज जल्द असल और मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स हासिल कर लें। 14 अगस्त के बाद भरपूर मुहिम और कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.5 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगा। ऑयल इंडस्ट्री ने मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान माल बरदार ट्रेन आइंदा माह चलाने का ऐलान। माल बरदार ट्रेन चलाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर से रूस तक माल बरदार ट्रेन चलाई जाएगी। दफ्तर खारजा हुक्काम के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट अगस्त में शुरू किया जाएगा। पहली माल बरदार ट्रेन 16 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से होती हुई रूस पहुँचेगी। इक़दाम का मकसद जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। और पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए बरतानिया चले गए। कोच सलमान इकबाल के साथ 11 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग करेंगे। अरशद नदीम स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल डायमंड लीग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा भी शरीक होंगे। डायमंड लीग 24 से 29 अगस्त तक तय। पाकिस्तानी एथलीट 13 से 21 सितंबर तक होने वाली टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शरीक होंगे।